آئینی ترامیم نے ایک بھونچال نہیں مچا دیا پورے ملک میں؟ احتجاج اسلام آباد میں دیکھیں، لاک ڈاؤن چل رہا ہے، لاہور میں لوگوں کی زندگی مشکل ہوئی ہوئی ہے، جیرن ہوئی ہوئی ہے. یہ صرف آئینی ترامیم ہی آپ کو وجہ لگ رہی ہیں یا پیچھے کچھ اور بھی ریزنز ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. بڑا اہم ایشو ہے اور اس وقت جو ہے ملک جن چیزوں کا شکار ہے اور جس خلفشار کا شکار ہے اس میں یہ باتیں سمجھنے کی بڑی ضروری ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ صرف آئینی ترامیم جو ہیں اس وقت پولرائزیشن اور یہ جو سچویشن کریٹ ہوئی ہے اور اس طرابیت جو پوری عوام کے اندر ہے اور ایک ان یوزول سچویشن کریٹ ہو گئی ہے، اس میں آئینی ترامیم جو پرپوز کی گئی ہیں میرے خیال میں شاید دیٹ از ون آف دا ریزن. اس کے علاوہ ایک جو پولیٹیکل جنگ جو ہے پچھلے ایک عرصہ سے چلی آ رہی ہے سنس دی الیکشن جنرل الیکشن کنڈکٹڈ اور رجیم آ گئی اور انہوں نے کہا جی ہمارے جو ہے وہ نامینیشن پیپرز سے لے کر الیکشن تک ساری انجینئرنگ ہوئی ہے، وہ ساری چیزیں مسلسل چلتا آ رہا ہے اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ یہاں تک چیزیں پہنچ گئی ہیں. تو جو ابھی ایک سچویشن کریٹ کر دی گئی ہے اس میں جو ابھی آپ نے کہا، مجھے اس بات سے آپ سے اتفاق ہے کہ آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کے اندر جو ہے ایک ڈیفینیٹ قسم کی بائیفرکیشن ہے ججز کے درمیان. 13 جج اور میرا جج، یہ کبھی ہم نے تاریخ میں نہیں دیکھا تھا اور ایسا بھی نہیں دیکھا تھا کہ بینچز بنے اور پتہ چل جائے کہ فیصلہ کیا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. جیسے ہی بینچ بنتا ہے تو آپ 24 کروڑ میں سے کسی سے بھی پوچھ لیں کہ فیصلہ کیا ہوگا، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ فیصلہ کیا ہوگا. ایسا کبھی دس از ویری انفارچونیٹ فار دی ہول نیشن اینڈ فار دس کنٹری. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی وقت ہے کہ ساری قوم کے بڑے جو ہیں ان کو ایک پیج پہ بیٹھنا چاہیے، ایک پیج پہ کھڑے ہونا چاہیے اس ملک کی سلامتی کے لیے، اس کے مستقبل کے لیے اور اس ملک کی 24 کروڑ عوام اور اپنی آنے والی نسلوں کے مستقبل کی بچت کے لیے ایک پیج پہ بیٹھنا چاہیے اور بیٹھ کے یہ مسئلے کا حل نکالنا چاہیے. اس ملک کی پارٹی ہے، ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس ملک کے چیف جسٹس نے بھی انہیں ایک بطور سیاسی جماعت تسلیم کیا. آپ جو آئینی ترامیم کرنے جا رہے ہیں، آپ ان کو اعتماد میں کیوں نہیں لیتے ہیں؟ آپ کیوں ان کو بٹھاتے نہیں ہیں ساتھ؟ اب ان کی جو کنسرنز ہیں، آپ نے سلمان اکرم راجہ صاحب کی پریس کانفرنس سنی ہوگی جس میں وہ کہتے ہیں کہ آئینی ترامیم کے بعد لوگوں کو جیل میں ڈال دیا جائے گا نیشنل سیکیورٹی کے نام پر. کون ہوگا ان کا پرسان حال؟ وہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 63A کا جو فیصلہ ہوا آئینی عدالت میں جسے چیف جسٹس لگانے جا رہے ہیں، آپ دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو متنازع شخصیت بنا، وہ کنٹروورشل بنتے جا رہے ہیں. کون بنا رہے ہیں؟ سیاسی لوگ بنا رہے ہیں. نئے آنے والے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب، انہیں کون کنٹروورشل بنا رہا ہے؟ یہ سیاست دان بنا رہے ہیں. یہ کنٹروورسی یہ ختم ہونی چاہیے. جی بالکل آپ درست فرما رہی ہیں. دیکھیں اس میں آپ کی 2-3 باتیں آ گئیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ ججز کنٹروورشل جو ہے یہ اسی بات کا نتیجہ ہے کہ ججز کی ایفیلیشنز ہیں انفارچونیٹلی ود پولیٹیکل پارٹیز، حالانکہ انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان جو ہے انصاف کرنا ہے. اسی لیے جو ہے وہ آئینی کورٹ کی بار بار بات ہو رہی ہے کہ جو آئینی اور سیاسی فیصلے ان کے لیے علیحدہ عدالت جو اس مجوزے کے اندر، وہ بھی ایک چیز ہے کہ جی آئینی عدالت علیحدہ بنا دی جائے جس میں تاکہ آئینی مقدمات اس کے اندر چلے جائیں اور وہ میکسیمم بھی اگر ٹائم لیتے ہیں تو کوئی بات نہیں، تاکہ اوریجنل جورسڈکشن کے جو مقدمات ہیں آرٹیکل 185(3) کے اندر جو آپ کا اور میرا ایپلٹ رائٹ ہے، جو آپ کا میرا سول رائٹ ہے، وہ اس طرح سے بری طرح سے ڈسٹرب اور متاثر ہو رہا ہے کہ 10 20 سال سے مقدمات سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر سماعت ہیں اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں. ہمیں پتہ چلتا ہے جی آرٹیکل 184(3) کے تحت جو ہے وہ ان مقدمات کی یا سماعت ہو رہی ہے یا ان مقدمات کی سماعت ہو رہی ہے جس میں کوئی پولیٹیکل ایشوز ہیں یا کوئی فارم 47 کے کبھی یہ انٹرا پارٹی کبھی آپ 63A کے فیصلے ہو رہے ہیں. تو اس میں 24 کروڑ عوام کہاں ہے؟ 24 کروڑ عوام کا مقدمات جو ہیں آپ دیکھیں 20 سال بعد یا 30 سال بعد پتہ چلتا ہے کہ جناب جس مقدمے کی سماعت ہو رہی ہے اس مقدمے میں جو کانوکٹ تھا وہ جیل کے اندر اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اور کئی دفعہ ایسے بھی پتہ چلتا ہے کہ 30 سال بعد 20 سال بعد اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کہتی ہے کہ جی آپ کو باعزت بری کیا جاتا ہے. اب 30 سال اس کے جو قیمتی جو دن ہیں، بڑی مثال ہے ذوالفقار علی بھٹو کا کیس، آج عدلیہ اپنے ماتھے سے وہ داغ دھونے کی کوشش کر رہی ہے. ذوالفقار علی بھٹو کے مقدمے کو ایک لمبے عرصے کے بعد کھولنا اور جو سپریم کورٹ کے ایک ماتھے کے اوپر
दाग था उसको धोने के लिए उन्होंने कहा जी वो फैसला गलत हुआ हमसे, तो आज ही आप गलत फैसले क्यों करते हैं? आज आप फैसले करते हुए ये देखें कि इस मुल्क की इज्जत और वकार का भी ख्याल करना है, इस मुल्क की इंटेग्रिटी का भी ख्याल करना है। अगर ये हुकूमत नोटिफिकेशन जारी कर दे कि नए चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं और उधर से काजी फायजी साहब ये क्लियर कर दें कि आईनी अदालत बने, कुछ हो, मेरा कोई अमल दखल नहीं है, मैं कोई भी ओहदा कबूल नहीं करूंगा, अपनी समझते आधे मामले ऐसे ही हल हो जाएंगे। मैं ये समझता हूं कि काजी फायजीसा को जब उनका वक्त पूरा हो रहा है तो उनको खुद से ये कह देना चाहिए, आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूं कि वो कहें जी मैं कोई भी ओहदा कबूल नहीं करूंगा। ये उनका एक अपना, ये उनका अपना, देखें उनका ये अपना उनका सवाबदीद है। आप और मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकते। कई बेशुमार ओहदे ऐसे भी हैं जिनके ऊपर एज का कोई चेक नहीं है या लिमिटेशन नहीं है। अगर कोई और ओहदा जैसे इसके बाद कोई रिटायर होने के बाद, या आप देखिए कि साहब एक फार्मर जो है चीफ जस्टिस जो हैं तारड़ साहब जो हैं, एक चीफ जज रहने के बाद जो है वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने, तो कैसे उनको पाबंद कर दिया जाए कि जी कल को आपको बड़ा ओहदा जो है वो कबूल नहीं करेंगे, वो उनकी अपनी चॉइस है, वो करते हैं या नहीं करते, क्वालिफाई करते हैं कि नहीं करते। मैं समझता हूँ कि पसंद नापसंद के लिए ये ज़रूरी है कि आप एक दूसरे को बर्दाश्त भी करें, टॉलरेट करें। मैं बतौर प्रेसिडेंट लाहौर बार एसोसिएशन, मैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द अपनी कैबिनेट से बातचीत करके हम ये कोशिश करेंगे कि अगर ये बड़े खुद से इकट्ठे नहीं बैठते तो ये एशिया की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन आपको अपना फोरम मुहैया करेगी। इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए तमाम बड़े जो हैं ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है मैं लाहौर बार एसोसिएशन में इंशाल्लाह ताला बुलाऊंगा और उनसे बात करेंगे और उनको कहेंगे आपस में बैठ के डेलिब्रेट करें, एक पेज पे बैठें इस मुल्क की फलाह के लिए, इस कौम की फलाह के लिए और इस मुल्क में आइन की बालादस्ती के लिए इकट्ठे हों। मुजव्वज़ा तरमीम का हतमी मुसव्वदा तो किसी के पास नहीं है जो होने जा रही है। आपने कुछ और पढ़ा, हमने भी देखा, स्क्रीन पे कुछ और चला, इवन के मौलाना कहते हैं कि मेरे पास कुछ और था, पीपल्स पार्टी के पास कुछ और था। ये अब जो इन्होंने तरमीम करनी है, वकला बिरादरी को इस पर क्या एतराज़ है? एक आईनी अदालत तो वो पीपल्स पार्टी तो डटी हुई है इस पर, क्योंकि मिसाक़े जमहूरियत में हमारा तय था, ये तो बनना ही बनना है। लेकिन ये जो आर्टिकल 8 में भी तरमीम की ये लोग बात कर रहे हैं, फिर नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर अगर इन्होंने किसी को उठाना है, फिर वो मुकदमात अगर आप किसी और इदारे को दे देंगे तो ये क्या होगा इस मुल्क? वकला ने हमेशा आइन की बालादस्ती में, आप देखिए कि 1947 से लेकर आज के दिन तक 2007 वाली जजेस वाली तहरीक में भी हमेशा आइन की बालादस्ती के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, देते चले आ रहे हैं, देते रहेंगे इंशाल्लाह ताला, इस बात पे हमें पूरा यकीन है। वकला को ये एतराज़ है, आप देखें वकला जो हैं इस सिस्टम का ख़ास तौर पे कानून और आइन के हवाले से जो भी तरमीम आनी हैं वो बड़े ही ओरिजिनल स्टेक होल्डर हैं। आप हुकूमत अगर जो है वो अपनी बगल से निकाल के एक मसवदा रख देगी और 6 मगोइयाँ तो फिर होंगी, उसको छुपाने की ज़रूरत नहीं थी। मैं समझता हूँ जैसे ही पूरी दुनिया में जो कानून साजी होती है, मैं उसको आपको बताता हूँ। मैं US बोस्टन से लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग का एक कोर्स पढ़ रहा था जो 6 मंथ का था, तो जो उन्होंने तरीका बताया हमें कानून साजी कैसे की जाती है, यहाँ उससे एंटायरली डिफरेंट है। उन्होंने कहा जी पहले जो मसवदा लाना चाहते हैं वो मसवदा लेके आएँ, उसको स्टेक होल्डर्स जो है, अगर एजुकेशन का है तो आप उसातिज़ा को बुलाएं, अगर लॉ का है तो उनको बुलाएं, अगर हेल्थ के हवाले से है तो आप डॉक्टर्स को बुलाएं। जो स्टेक होल्डर हैं उनको ऑन बोर्ड करें, उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन लें, ओपिनियन लेने के बाद आप उसको बहस उसके ऊपर करें, उसको एक रिफाइंड सूरत हाल के अंदर लेके आएँ, उसकी जो रेलेवेंट कमेटी है जिसमें टेक्नोक्रेट्स हैं उनके सामने रखें, वो डिटेल डिस्कशन के बाद जो है उसको आप भिजवाएं, कैबिनेट से अप्रूवल लें और आपको उसको असेंबली में लेके आ जाएं। असेंबली में फिर जो आपके इलेक्टेड मेंबरान हैं अवाम के, जो 24 करोड़ अवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो अपना विजडम दें उसके ऊपर। उस विजडम के बाद अगर मेजॉरिटी कहे कि इसको पास होना चाहिए, ये तरीका होता है किसी आइन साजी का। लेकिन यहाँ ऐसे वाकई आपकी बात दुरुस्त है कि इस मसवदे को जो है एक प्रॉपरली पब्लिक के अंदर फ्लोट होना चाहिए था। देखिए सर, पाकिस्तान का आइन एक, मैं समझता हूँ एक ही हमारे पास सेक्रेट डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर तमाम जमातें, इस मुल्क की तमाम सियासी और मजहबी जमातें एक हैं। मैं समझता हूँ इससे हमारी आवाम के तकसीम का खदशा हो, इस मुल्क के जो मैं समझता हूँ फ्यूचर का अगर कोई इशू हो, तो इसके लिए मैं समझता हूँ ये छोटी कुर्बानी है कि आप लोगों को ऑन बोर्ड ना करें, सब ऑन बोर्ड करना चाहिए। 63A को लेकर जो फैसला है इस पर भी वकला बिरादरी बड़ी जी मैं अर्ज करता हूँ। देखें बात यह है कि जब 63A के ऊपर पहले फैसला आया तो बंदियाल साहब का, आप देखें 63A को आप पढ़ें, उसके कंटेंट्स पढ़ें, उनके कंटेंट्स के अंदर जो है जो चीज़ें लिखी गई हैं
उस जजमेंट को पास करते हुए उन कंटेंट्स को तरमीम उसके अंदर जो है उसको तरमीम करने का कहा गया। अब आइन को री राइट जो है करना सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार नहीं है। बेशक मैं समझता हूँ ये से एक बड़ी खराबी आएगी कि लोग फ्लोर क्रॉसिंग करेंगे, हॉर्स ट्रेडिंग होगी वगैरह वगैरह, लेकिन ये इसको भी आप जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट के बजाय इसमें भी तरमीम आप अगर लेके आना चाहते हैं जो मुनासिब है, तो आप इसको पार्लियामेंट के अंदर लेके आए। तो पार्लियामेंट करेगी ना, अब तरमीम होगी ना इसमें, वट एवर इट इज। अब बात ये है कि जो पहले उसी वक्त वकला ने पिटीशन फाइल कर दी थी, उसी वक्त जो पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से पिटीशन चली गई थी कि ये जजमेंट जो है जिसके नतीजे में आप 63A ला रहे हैं, ये आइन को री राइट करने वाली बात है। जब बंदियाल साहब जी तब से, और तब से वो पिटीशन पेंडिंग थी, नई पिटीशन नहीं थी। अब उन्होंने समझा कि वक्त की जरूरत है, तो वक्त आपको पता है हमेशा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और वक्त जो है वही मैं कह रहा हूँ। देखें जी, यहाँ तो वक्त वाली बात है, जो अखबार से वो 20 रुपए का बिकता है, शाम को 20 रुपए किलो भी बिकता है फिर। तो बात यह है कि वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज अगर तरमीम आई हैं तो इसलिए एतराज़ हो रहा है कि शायद ये वक्त शायद मुनासिब नहीं है। आप देखें कि इस आइन के अंदर 25 तरमीम पहले भी आई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पार्लियामेंट 18वीं भी आई है जिसमें सूबों को इख्तियार मिला है, 19वीं भी आई है, 21वीं भी आई है, 24वीं है, 25वीं आई है। अब देखिए पार्लियामेंट का ये इख्तियार है कि वो कवानीन के अंदर जो है तरमीम करे। मैं समझता हूँ पार्लियामेंट का सिर्फ अवाम के सामने रखे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करने लगा हूँ। पूरी दुनिया ने जहाँ कहीं भी तरक्की आई है, आपके साथ वाला मुल्क चाइना आपके साथ आज़ाद हुआ, बांग्लादेश आपके साथ आज़ाद हुआ, बल्कि 71 में आज़ाद हुआ, मलेशिया आपके साथ आज़ाद हुआ, कई सारे ममालिक आपके साथ आज़ाद हुए। उन तमाम ममालिक में बेहतर लेजिस्लेशन हुई और रूल ऑफ लॉ का क़याम आया। इसी वजह से आज वो तरक्की की मनाजिल जो है वो तय दर तय किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ मसला ये है कि आज भी हम 1898 वाला क्रिमिनल प्रोसीजर पढ़ने पे और उसके ऊपर अमल दरामद करने के लिए पाबंद हैं। 1860 का पाकिस्तान पिनल कोड आज भी हम पढ़ने के लिए और उसके ऊपर अमल दरामद करने के लिए पाबंद हैं। इसी तरह सिविल प्रोसीजर कोड, ये मैं इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ मैडम। इसमें बात ये है कि पार्लियामेंट का ये इख्तियार सिर्फ इख्तियार नहीं है कि वो कानून साज करे, पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है, ये अंडर ऑब्लिगेशन है कि वो इसीलिए इलेक्ट होते हैं कि उनको कानून साजी करनी चाहिए और बेहतर कानून साजी करनी चाहिए, जिन कवानीन के अंदर तरमीम आनी चाहिए ताकि वो इम्प्लीमेंटेबल हों, ताकि वो बेनिफिशियल हो इस कौम के लिए और उनका उनसे बेहतर नतायज बरामद होते हैं। अदालतों के फैसले देकर कवानीन साजी करना, वो भी टाइमिंग पर एक बहुत बड़े सवालात उठते हैं। फिर अदालत की जो रिट है ये उसको चैलेंज करने के मुतरादिफ है। मैं करता हूं, देखें जी, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 189 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इसीलिए है कि ऑल द जजमेंट्स ऑफ द सुपीरियर कोर्ट्स आर बाइंडिंग बाय ऑल पब्लिक फंक्शनरीज, नीचे वो सब के लिए पाबंदियां उसके ऊपर हैं। लेकिन इसमें आप देखने वाली बात यह है कि वो जजमेंट जो है वो मेलाफाइडी नहीं होनी चाहिए। वो जजमेंट जो है वो मुल्क की बका या मुल्क की किसी ऐसी चीज़ के ख़िलाफ़ ना हो जिससे आपके जो है, जैसे आप इस वक्त देखें कि कितना एक खलफशार पैदा हुआ है। ऐसे हालात में इवन 63A की भी जजमेंट अगर आ रही थी तो चाहिए था कि एक बैलेंस बेंच बनता और तमाम, लेकिन वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो सदारती ऑर्डिनेंस लाया गया, उसमें चाहिए था तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को सुना जाता, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदों को भी सुना जाता और एक बैलेंस फैसला आता। बेशक यही फैसला आता, लेकिन सबको समाज का एक सबकी नुमाइंदगी और सबको इस बात के ऊपर लाया जाता कि आइन को रीराइट नहीं किया जा सकता। लाहौर बार एसोसिएशन आज जो अंदर सारी शेलिंग हुई है, सारा दिन हम मनाजिर देखते रहे हैं। जब पुलिस शेलिंग कर रही थी, प्रोटेस्टर्स अंदर आ गए, एहतजाज करने वाले अंदर शेलिंग हुई, तो आप लोगों का क्या रिएक्शन है इस पे? जी देखें, इसके ऊपर जो है आज हमने अपनी कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है और उसमें हमने तय किया है कि इसके ऊपर हम भरपूर एहतजाज करते हैं और मजम्मत करते हैं ऐसे तमाम लोगों की और तमाम ताकतों की जिन्होंने शेलिंग के लिए उनको कहा या ऑर्डर किया। और ख़ास तौर पे हमने मंडे वाले दिन, जी यकीनी बात है, पंजाब पुलिस ने किया और हम मंडे वाले दिन इसके ऊपर स्ट्राइक हमने कॉल दी है और मंडे वाले दिन लाहौर के तमाम कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर हमने पुलिस का दाखिला बंद किया है और किसी को हम रिमांड तक भी नहीं लेने देंगे। अगर अदारों का इज्जत वकार और तकरीम नहीं रहेगी तो यकीनी बात है फिर हम प्रोटेस्ट जो है हमारा हक है। जैसा कि आपने देखा कि मॉडल टाउन कोर्ट्स जो 10 कोर्ट्स का मुतनाज़ा नोटिफिकेशन है, हम बार बार हुकूमत से और जुडिशरी के बड़ों से कह रहे हैं कि आप वो 10 अदालतों की वजह से 450 और 470 अदालतों का काम डिस्टर्ब ना करें, उसके ऊपर भी हमारी बात नहीं सुन रहे, तो यकीनी बात है इसके ऊपर एहतजाज तो होगा। क्या आज पुलिस पुरअमन
لوگوں پر کر رہی تھی. دیکھیں جی لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے, لیکن جب وکلاء جو ہیں وہ سول کوٹ ایوانے اندر داخل ہوئے تو اس کے اندر داخل ہو کے جو شیلنگ کی گئی, ہمارا جہاں ہماری کیبنٹ بیٹھتی ہے کمیٹی روم کے سامنے, اس کمیٹی روم کے اوپر شیلنگ ہوئی اور وہاں شیلنگ ہوئی. یہ میں اور جہاں ججز کی گاڑیاں کھڑی تھیں وہاں شیلنگ ہوئی. میں سمجھتا ہوں اس بات کا نوٹس چیف جسٹس پاکستان کو لینا چاہیے, چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو لینا چاہیے, اور سیشن جج لاہور کو اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جنہوں نے جو ہے ایک ادارے کا تقدس پامال کیا.